Ladies and gentlemen, we have amongst us a 1984 batch IPS officer of Union Territories cadre, Shri Karnail Singh Ji, who retired as the Chief of Enforcement Directorate in 2018 after 34 years of distinguished service. During his tenure, he did remarkable work under laws like the Prevention of Money Laundering Act and the Foreign Exchange Management Act, and has been instrumental in handling several high-profile cases successfully to his credit. Shri Karnail Singh Ji is a graduate from Delhi College of Engineering in 1979 and holds his master's degree in computer science from IIT Kanpur in 1981. He subsequently went on to pursue a degree in law. He then later earned his diploma in information technology from the Asian School of Cyber Laws in 2002 and then an MBA from the University of Delhi in 2008. He has been awarded the President Police Medal for Meritorious Service in 2002 and President Police Medal for Distinguished Service in 2008. He has also penned a book titled Batla House, An Encounter That Shook the Nation. He is also the recipient of IIT Kanpur Satyendra K. Dubey Memorial Award 2021. Sir has also been the founder member and patron of DC-DTU Alumni Association. As they say, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, जहां कामयाबी शोर मचाएगी. With these words, I invite you, sir, for your motivational words. Professor Randeep Guleria, Director AIMS, Chief Guest of today. Shri S.R. Narasimhan, my colleague, CMD of POSOCO. Professor J.P. Saini, Vice Chancellor of Delhi Technological University and NSUT, both the universities. Professor Madhusudan Ji, Professor S. Indu, Professor Rajesh Rohilla, Professor Rajveshwari Pandey, Professor Rachna, our guests, particularly I would like to mention Mrs. Madhu Jain. Her husband was from alumni of this institute, and she used to join our annual alumni meet with him. Her daughter is also from this very institute, and she is district judge in Delhi. The executive members of the Alumni Association, Mr. Sanjay Diwan, Mr. P.D. Siwal, Mr. Arun Gupta, other alumni members, the universities, faculty, and the dear students. First of all, I thank Professor J.P. Saini to invite me in this function. Actually, on the first occasion when it happened, the Golden Pride, I attended even that function. I congratulate all the students for doing so well, getting the medals in education and now entering into the new field. Now, ये जो फेज है लाइफ का, particularly I am talking of PhD students, ऑलरेडी कहीं कर रहे हैं कुछ ना कुछ जॉब, जो B.Tech के हैं, M.Tech के स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है और जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है जहाँ आप जा रहे हो और जहाँ आप हो. अच्छा, महाजन साहब को मैं भूल गया, अभी देखा है, ऐसे महाजन साहब हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं. तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आप एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर से एक अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं. यूनिवर्सिटीज़ में लाइफ सिंपल थी, घर पे पेरेंट्स थे, यहाँ पर फैकल्टी थी, आपको डांटने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके पीयर ग्रुप था. जब आप जॉब में जाते हैं, द थिंग्स आर नॉट नोन इन एडवांस कि क्या हो सकता है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, ये भी नहीं मालूम आपको. मैनी टाइम्स गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता.
एक संस्कृत में वर्ड है असूया, जिसका मतलब है अगर किसी आदमी में कोई कमी ना हो उसमें कमी ढूंढना। तो जब आप राइज करोगे तो आपके कुलीग जो होंगे वो आप में कमी ढूंढने लगेंगे, और आप भी कमी ढूंढने लगोगे दूसरे में। तो संस्कृत में आगे भी कहा है कि असूया जो करता है वो मर गया समझो। तो जीवन में पहली बात तो ये है कि आप किसी की गलतियां मत ढूंढो, क्योंकि अगर आप गलतियां ढूंढने में लग गए तो आप खुद एडवांस कैसे करोगे, खुद आगे कैसे बढ़ोगे। तो लाइफ का जो चेंज पैटर्न है जिसमें आप जा रहे हो, या बहुत से लोग ऑलरेडी हैं, उसमें जो डिफ़िकल्टीज आएंगी उनको फेस करना इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आपको ये भी सोचना आपको जीवन में क्या चाहिए। बहुत से लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि आप खुश हैं, आर यू हैप्पी, यू विल फाइंड दे आर नॉट हैप्पी। बेटा बात नहीं सुनता, बेटी बात नहीं सुनती, वाइफ या हस्बैंड उल्टा सीधा बोलते हैं, you find they are not happy. But are we looking for happiness? Are we looking for success? What we are looking in life? So एक है डेथ बेड एनालिसिस। आप बीच बीच में ना सोचो ये मेरा लास्ट दिन है, एंड फिर सोचो जो मैं कर रहा हूँ क्या वो ठीक कर रहा हूँ। आपको खुद अंदर से आवाज़ आएगी कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जब आप जॉब में हैं तो कुछ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एंड बहुत सी स्किल्स आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सीखी होंगी, बहुत सी स्किल आपने पेरेंट्स से सीखी होंगी, बहुत सी स्किल्स आपने दोस्तों से सीखी होंगी। एक दो स्किल का मैं जिक्र करूँगा। पहला है वी कॉल रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी वर्सेस इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। नाउ रिफ्लेक्टेड पर्सनैलिटी क्या है, किसी ने आपको गाली दी, आप भी उस पर गुस्सा हो गए। अभी कल मुझे एक पुराना श्रद्धानंद कॉलेज का स्टूडेंट मिला, कॉलेज में लड़ाई हुई, दूसरे लड़के ने चाकू निकाल लिया, इसने चाकू निकाल कर उसको मार दिया गुस्से में, जेल में रहा, ये सजा हो गई। अब ये कहता है कि भाई अगर वो एक क्षण गुस्सा नहीं होता तो माई लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट। One momentary impulse can change the entire life, and that is what is reflective personality is. Our जो हम एक्शन ले रहे हैं वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, यानी वो अगर उसको मालूम है कि हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो वो सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और आपको ट्रैप कर सकता है, उस सिचुएशन को क्रिएट करके आपको वही रिएक्शन आपसे कराएगा। दूसरी है इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, वो जो करेगा सोच समझ के करेगा। आप उसको गाली भी दोगे तो चुप बैठ जाएगा, उसका जवाब कभी देगा टाइम पे। गोवा में मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैं गोवा में पोस्टेड था, कुछ लोग आए चीफ मिनिस्टर के पास कंप्लेंट करने की भाई वो आदमी हमारे पैसे नहीं दे रहा है। तो सीएम ने कहा भी उसको तंग करो, कहते जो तंग ही नहीं होता उसके घर पे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वो चुप बैठा रहता है अंदर, अपना योगा करता रहता है। तो that control should be there. Then the success. There are two types of intelligence. Other types are also there, but I'll talk only of two types of intelligence. One is जो इंटेलिजेंस आपकी IQ जिसको कहते हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, वी ऑल हैव दैट। आपने इंजीनियरिंग की, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग की है, इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि आप में इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं है। आपकी IQ अच्छी होगी, 120 से ऊपर होगी लगभग सबकी। द सेकेंड इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। डू यू हैव एम्पैथी? समटाइम्स आप देखेंगे कि आप सीनियर ऑफिसर है या आप जॉब में आ गए हैं, बट ही डजंट नो हाउ टू बिहेव विद सबऑर्डिनेट्स। कई बार हम कहते हैं जी हम इतना पढ़ते लिखते हैं लेकिन पॉलिटिशियंस हमसे ऊपर आ जाते हैं। क्या क्वालिटी है उनमें? वी मस्ट ऑब्जर्व दे आर इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट। उनको मालूम है किस आदमी से कैसे बिहेव करना चाहिए, किस आदमी की स्थिति क्या है,
उनको माफ़ करना भी आता है लोगों को। और मैंने देखा है, मतलब ऑफिसर्स में, अगर किसी से नाराज हो गए तो उसको फिर बदला लेने में लग जाते हैं। दैट विल नेवर गिव सक्सेस। अगर किसी को सक्सेसफुल होना है लाइफ में, सिंपैथी बहुत जरूरी है, दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। सेकंड क्वालिटी आप में होनी चाहिए। फर्स्ट इज द इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, सेकंड इज द एम्पैथी। एंड टफ टाइम सब पे आते हैं। जब आप जॉब करोगे, हो सकता है आपका बॉस खराब आ जाए, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें आपको एक्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया, अब गुलेरिया जी को स्टेटमेंट देना है, दैट्स ए टफ टाइम। क्या स्टेटमेंट दिया जाए, उसको कैसे हैंडल करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और गीता में कहा है एक इक्विनिमिटी ऑफ माइंड, मन की समत्व रहना, समत्वम योगम उच्यते। उन्होंने कहा है कि अगर अपने माइंड को बैलेंस कर लें आप, इससे बड़ा कोई योग नहीं है। वो जितने भी उन्होंने योग बताए हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, वो सारे इसी के लिए बताए हैं कि मन को बैलेंस कैसे किया जाए। आप मेडिटेशन से बैलेंस करो, आप योगा से बैलेंस करो, आप अपने सोच से बैलेंस करो, बट वो बहुत जरूरी है जीवन में। देन वी टॉक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। नाउ लीडरशिप क्वालिटीज के लिए only 3 things are required. It is not that how will you lead people. One is self-discipline. अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप लीड नहीं कर सकते एक्चुअली। और सेकंड है, मैंने कैसे कहा, एम्पैथी, दैट इज ह्यूमिलिटी। लीडर शुड हैव ह्यूमिलिटी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लिसनिंग कैपेसिटी। एक लीडर जो है, अगर उसमें लिसनिंग कैपेसिटी नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकता। एक कहानी है, चाइना में जो है राजा ने अपने भावी राजकुमार जो था, उसको राजा बनेगा, उसको भेजा गुरु के पास कि भाई जाओ सीख के आओ। एजुकेशन उसने ले ली थी, उसने कि नहीं, फाइनल पॉलिटिकल एजुकेशन आपको गुरुजी देंगे। वो गुरु के पास गए, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम जंगल में जाओ, 1 साल रह के आओ। वो 1 साल जंगल में रहा। उससे आने के बाद पूछा भाई क्या देखा तुमने, तो उसने कहा जी मैंने चिड़ियों का चहचहाना देखा, पेड़ों की वो हवा की आवाज़ सुनी, शेर का दहाड़ना, बहुत सारी चीज़ बनाई। उसने कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यू गो अगेन। 1 साल फिर वो रह के आया। उसके बाद पूछा कि क्या देखा। उसने कहा जी मैंने नदियों की आवाज़ सुनी, मैंने हवा की आवाज़ सुनी, डिफरेंट चीज़ें उसने बताई। कहता आई एम नाउ सेटिस्फाइड। वो कहता है कि अगर राजा जो है, जिस आदमी को आपसे कह नहीं रहा, उसको समझने की आप में क्षमता नहीं है। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पर्सन हु हैज नॉट स्पोकन हिज ग्रीफ, यू कैन नॉट बी किंग। यू कैन नॉट बी लीडर इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर्स। तो ये आप सबके लिए बेसिकली, जब आप जॉब में जाएंगे, और जॉब में होंगे भी बहुत से लोग, प्लीज़ कीप योर हेड डाउन, build professionalism in you, keep learning, don't be reflective personality, don't be arrogant. You will be successful and happy in life. Otherwise, you can be successful, you may not be happy. With that, I stop. I wish you all the best. I wish all success you do. One thing I would like to say about my university, the university has been doing very well. The international ranking of this university has been jumping, and it is between now 600 to 800. Every year it is jumping by 200 points. I firm believe that under the leadership of Professor Saini,
and the faculty which we have got. We'll jump 200 more next year. That is my feeling we should do it. 400, sir. I wish you all the best again. Thank you so much.